Good morning dear students. Today we are going to start the second part of our chapter number 4, unit number 3. In the last lecture we have done about the magnetic field on the axial line of the bar magnet. Today we are going to solve the magnetic field on the equatorial line of the bar magnet. Now let us suppose this is the bar magnet having the north and south pole such that the 2L is the length of the dipole and M is the strength, dipole strength. O is the center point and P is the point that lies on the equatorial line. Let us suppose the P point is at a distance r from the magnetic dipole and OS के आपके पास L है, ON के आपके पास that is equal to L. Now at a point P, let us suppose B1 is the magnetic field due to north pole and B2 is the magnetic field at a point P due to the south pole. As the direction of the magnetic field away from the north, so the magnetic field B1 is acting away and towards the south होती है, तो यहाँ पे magnetic field B2 है that is acting towards the south pole. जो net magnetic field होगा that will be equal to the vector sum of the B1 and B2. Now what about the magnitude of B1? हमने last lecture में निकालना सीखा है. B1 will be equal to mu naught by 4 pi pole strength upon NP the square. NP here will be NP. NP is this one. If this is R, this is L, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. सिमिलरली B2 म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन एस पी स्क्वायर म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. ये अब ये देखो, इफ दिस इज एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा. इफ ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा. हियर इज ऑल्सो एंगल थीटा. तो मीन्स अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें B1 को, B1 cos theta is acting towards the x dash and B1 sin theta will act vertically downward. Similarly B2 is acting B2 cos theta will act towards the x axis and B2 sin theta will act vertically downward. But the magnitude of B1 and B2 are equal, so the sin theta components will cancel each other, only we are left with the cos theta. So the net magnetic field will be equal to B1 cos theta plus B2 cos theta, or B equatorial mu naught by 4 pi m upon r square plus l square cos theta plus mu naught by 4 pi m upon r square plus l square cos theta. इसको सॉल्व किया, ये 2 टाइम्स हो गया आपके पास. नाउ व्हाट अबाउट द cos थीटा? यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल हो, आप कोई भी ओ एन पी ले लेते हैं यहाँ से, या पी ओ एन. राइट एंगल ट्रायंगल से हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे. cos थीटा विल बी इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. तो ये वैल्यू हमने ऊपर पुट कर देनी है. पुट करके ये दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट. तो यहाँ से ये देखो, ये हमने स्केलर फॉर्म में लिखा है. जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ एंड बी इक्वेटोरियल पी से एक्स डैश की ओर एक्ट हो रहा है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे. तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो बी इक्वेटोरियल विल बी इक्वल टू माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई m vector upon r square plus l square raised by 3/2. This is the required value of the magnetic field on the equatorial line of the bar magnet. Now if the bar magnet is of very small length such that r is very greater than l, तो l स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर देंगे एज कम्पेयर टू r स्क्वायर. तो यहाँ से b इक्वेटोरियल कितना आएगा आपके पास, म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन r क्यूब. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट. नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द शॉर्ट डायपोल. हमारे पास एक शॉर्ट डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल, जिसके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक पर्टिकुलर एंगल पे लाई कर रहा है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड. ये सेम रहेगा जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा था. यहाँ पे भी हम मैग्नेटिक डायपोल को दो डायपोल्स में डिवाइड करेंगे. लेट अस सपोज द डायपोल NS is divided into or made up of the two dipoles, that is the N1 S1 and N2 S2, such that the point P lies on the axial line of the N1 S1 dipole and P lies on the equatorial line of the dipole, that is the N2 S2. According to that, now P lies on the axial line of the dipole N1 S1. B1 will be mu naught by 4 pi 2m cos theta by r cube. Similarly अगर आपके पास B2 mu naught by 4 pi, B2 है मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू N2 S2 डायपोल जो उसके वर्टिकल मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई m sin थीटा बाई r क्यूब. नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी B1 प्लस B2 वेक्टर एंड दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री. अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर 2B1 B2 cos 90 आना था, cos 90 वाली टर्म जीरो हो गई. तो यहाँ से आपके पास बचा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m cos थीटा बाई r क्यूब द होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट बाई 4 पाई m sin थीटा बाई r क्यूब होल स्क्वायर.
इसको सॉल्व किया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4πm इंटू √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/r³. Now next we have to calculate the tan alpha. Tan alpha is the direction of the resultant magnetic field with respect to the pk. Now in this case tan alpha will be equal to b2/b1, वैल्यूज पुट की तो tan alpha is equal to 1/2 tan theta. अगर हम यहाँ पे स्पेशल केसेस की बात करें, थीटा इज 0 मीन्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट p लाइज ऑन द एक्सियल लाइन, तो आपके पास b एक्सियल कितना आ गया 2m/r³. अगर थीटा 90 पुट कर लेंगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन आ जाएगा, b इक्वेटोरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4πm/r³. सो दिस इज टुडेज लेक्चर. डियर स्टूडेंट्स, ये सेम है जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ किया था. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. थैंक यू.